ایک بار قرآن ٹھیک سے پڑھتا یا صرف پڑھتا تو بھی سمجھ جاتا مسلم ایمان کیا ہوتا ہے. کبھی کوئی پرابلم ہی نہیں محسوس ہوئی. مسلمان محلے میں اکیلا چلا جاتا تھا. مجھے کسی نے کبھی ایسے یہ نہیں کیا. آ کے ایسے ملتے رات کو 3 بجے 4 بجے رات کو، نانا بھائی کیا کھاؤ گے، یہ کھاؤ گے. خوف اتنا تھا نا. اور ہم کچھ نہیں یار، ہمارے یہ سیاستدان اکساتے ہیں اور ہم خواہ ایک دوسرے کے سر توڑتے ہیں. ویسے تو ہم ساتھ میں ہی رہتے ہیں کتنے سالوں سے. خیر چلو، سیاست کے بارے میں نہ بولے تو بہتر ہے. قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری پیغام ہے، آخری وحی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن ساری دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے. یہ انسانیت کے لیے پیغام ہے، رحمت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، گنہگاروں کے لیے تنبیہ ہے، بھٹکوں کے لیے ہدایت ہے، شک اور شبہ والوں کے لیے یقین ہے، مشکلات میں مبتلا لوگوں کے لیے رہنما ہے، نا امیدوں کے لیے امید ہے. یہ قرآن مجید کی ساری جو نعمتیں ہیں، کیا ایک انسان کے لیے حاصل کرنا ممکن ہے جب تک وہ قرآن مجید کو نہ پڑھے، نہ سمجھے، اس کے معنی پہ تدبر نہ کرے، جب تک اسے اپنے زندگی میں عمل نہ کرے. یہ ساری قرآن مجید کے نعمتیں انسان کے لیے حاصل کرنا ممکن ہے صرف قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد، اس کے معنی کو جاننے کے بعد، اس کے معنی پہ تدبر کرنے کے بعد اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کے بعد. الحمدللہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے قرآن مجید. لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید سب سے زیادہ نہ سمجھ کے پڑھنے والی کتاب بھی ہے. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تو ہے، لیکن وہ ایک واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے بنا سمجھ کے. اور کیونکہ ہم مسلمانوں نے اکثر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چھوڑ دیا، اسی لیے جو قرآن مجید اور مسلمانوں میں جو لگاؤ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کا دل نہیں بدلتا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے مسلمانوں، آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمانوں کی تعریف کر رہا ہے، ہمیں ایک اونچا عہدہ دے رہا ہے. جب بھی تعریف کی جاتی ہے، جب بھی کوئی اونچا عہدہ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں، اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے. اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ اگر ہم قرآن مجید نہیں سمجھ کے پڑھیں گے اور لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور لوگوں کو برائی سے نہیں روکیں گے، ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں، ہم خیرہ امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں. قرآن آتا ہے لفظ قرأ سے، جس کے معنی ہیں، قرآن کے معنی ہے کتاب، پڑھو. قرآن کو کہا گیا فرقان، جو حق اور باطل کے درمیان
फैसला करता है। फुरकान, क्राइटेरिया टू जज राइट फ्रॉम रॉन्ग, वो किताब जो हक और बातिल के दरमियान फैसला करती है। जब तक हम कुरान मजीद को समझ के नहीं पढ़ेंगे, हमें कैसे पता लगेगा क्या हक है और क्या बातिल है। इसीलिए कुरान मजीद को समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है। आज हम तहकीक करेंगे, अक्सर मुसलमान कुरान मजीद को समझ के क्यों नहीं पढ़ते। सबसे आम बहाना जो मुसलमान देते हैं कुरान मजीद को नहीं समझ के पढ़ने का, वो ये है कि हम अरबी जबान नहीं जानते। आज सारी दुनिया में 700 करोड़ इंसान हैं और तकरीबन 150 करोड़ मुसलमान हैं, यानी 20% से ज्यादा, 20 से 25% सारी दुनिया में सारे इंसानों में से मुसलमान हैं। और अरब सिर्फ मुसलमानों में 15% है। और चंद और लोग हैं, चंद फीसद मुसलमान हैं जो अरब ना होने के बावजूद अरबी जबान जानते हैं। आज दुनिया में तकरीबन 25 करोड़ मुसलमान अरबी जानते हैं। 150 करोड़ में से 25 करोड़ मुसलमान अरबी जानते हैं। 80% से ज्यादा मुसलमान अरबी नहीं जानते। जब भी कोई इंसान पैदा होता है, वो मां के पेट में से कोई भी जबान नहीं जान के पैदा होता है। वो पैदा होने के बाद सबसे पहली जबान जो सीखता है वो अपनी मादरी जबान है, ताकि वो अपने फैमिली के लोग से गुफ्तगू कर सके, उनको समझ सके। उसके बाद वो माशरे की जबान सीखता है ताकि वो उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। और जब वो स्कूल या कॉलेज में जाता है तो जिस जबान में तालीम हासिल करता है वो जबान सीखता है। अक्सर दुनिया में लोग कम से कम 2 या 3 जबान तो जानते हैं, कम से कम 2 या 3 जबान जानते हैं। कुछ लोग 4 या 5 जबान जानते हैं, कुछ लोग 6 या 7, कुछ लोग को कहते हैं लिंग्विस्ट, बहुत सारे जबान जानते हैं। लेकिन अक्सर कम से कम इंसान 2 या 3 जबान तो जानता है। क्या ये जरूरी नहीं है कि हम वो जबान भी जाने जिसमें हमारा आखिरी पैगाम, हमारे रब, हमारे खालिक ने आखिरी पैगाम भेजा, क्या वो जबान हमें नहीं जानना चाहिए? मुझे इस वक्त याद आ रहा है डॉक्टर मॉरिस बुकेल के बारे में, और मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं कि डॉक्टर मॉरिस बुकेल एक मशहूर साइंसदान और डॉक्टर थे, और उन्हें मिला था फ्रेंच एकेडमी अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। और डॉक्टर मॉरिस बुकेल जो ईसाई थे, उन्हें चुना गया था रिसर्च के लिए मम्मी ऑफ मनप्टा का। मम्मी ऑफ मनप्टा वो फिरौन जो मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त था, उसके जिस्म, उसे कहते हैं मम्मी, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए डॉक्टर मॉरिस बुकेल को चुना गया था। और क्योंकि डॉक्टर मॉरिस बुकेल ईसाई थे और बाइबल पढ़ चुके थे, वो जानते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते करते फिरौन दरिया में डूब गया था। लेकिन जब वो सऊदी अरेबिया पहुंचते हैं, वहां एक मुसलमान उन्हें कहता है कि कुरान मजीद में लिखा है सूरह यूनुस में, सूरह नंबर 10 आयत नंबर 92 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हम फिरौन के जिस्म को महफूज रखेंगे ताकि वो आने वाले लोगों के लिए निशानी बने। तो मॉरिस बुकेल को यह पता चला कि कुरान मजीद 1400 साल पुरानी किताब है, उसमें यह लिखा है कि हम फिरौन के जिस्म को महफूज रखेंगे ताकि आने वाले लोगों के लिए निशानी बने। वो चौंक गए और वो कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े, और कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ने के बाद इतना मुतासिर हुए कि कुरान मजीद को अच्छे से जानने के लिए उन्होंने 50 साल की उम्र में अरबी सीखी।
आप सोच सकते हैं, एक गैर मुस्लिम, एक ईसाई 50 साल की उम्र में अरबी जबान सीख रहा है कुरान मजीद को समझने के लिए, और कुरान मजीद की तहकीक करने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी, बाइबल, कुरान और साइंस। तहकीक के बाद डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने अपनी किताब में ये लिखा कि कुरान मजीद में कई आयतें हैं जो साइंस अब एडवांस होने के बाद जानने लगी, जो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है। और डॉक्टर मॉरिस बुकेल कहते हैं कि कुरान मजीद में एक भी आयत नहीं है जो साइंस से टकराती है, लेकिन बाइबल में कई वर्सेस है जो साइंस से टकराते हैं। ये मिसाल देने की ये वजह है मेरी, ये कहने के लिए कि एक गैर मुसलमान ईसाई 50 साल की उम्र में अरबी जबान सीखता है कुरान मजीद को बेहतर समझने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ साल बाद अल्लाह सुब्हानहू डॉक्टर मॉरिस बुकेल को हिदायत देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मरने के पहले डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने इस्लाम कबूल किया था। तो उम्र कभी भी वजह नहीं है एक इंसान को अच्छे काम से रोकने के लिए, लेकिन हर मुसलमान को डॉक्टर मॉरिस बुकेल जैसा जज्बा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनके पास बहाना नहीं है। अगर कोई अरबी जबान नहीं सीख सकता है तो कम से कम वो कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े। और आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की अहम जबानों में कुरान मजीद का तर्जुमा हो चुका है। मौलाना अब्दुल मजीद दरियाबादी फरमाते हैं कि सारी दुनिया में सबसे मुश्किल किताब जिसका तर्जुमा किया जा सकता है वो है कुरान मजीद, क्योंकि कुरान मजीद की जबान आसमानी जबान है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की जबान है, और ये मोजिजा जबान है। इसीलिए कुरान मजीद का 100% तर्जुमा करना मुमकिन ही नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कई उलमा दीन ने कई साल रिसर्च करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अहम जबानों में कुरान मजीद का तर्जुमा कर चुके हैं। और हम अगर कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ेंगे तो बेशक हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो पैगाम है उसके बारे में पता लगेगा। और आपको कुरान मजीद का तर्जुमा उस जबान में पढ़ना चाहिए जो जबान में आपको महारत है। क्या बात है दोस्तों, वीडियो आपने देखी। पहले तो क्लिप था जो एक मशहूर बॉलीवुड अदाकारा थी, एक्ट्रेस हैं जरीन खान, उनका क्लिप चला। उन्होंने कहा कि मैं कुरान पढ़ती हूँ और मैं दीन को फॉलो करती हूँ, और मेरे हिसाब से जो मैं कर रही हूँ उसकी जवाबदेह मैं खुद हूँ, ना कि कोई और उसका जवाबदेह है। ठीक है, आपकी ये बात मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है डॉक्टर जाकिर नाइक का सेशन होता है, उसमें एक बंदा सवाल पूछता है, मॉडलिंग, फिल्मिंग, एक्टिंग और इस तरह की जो फील्ड है, एडवर्टीजमेंट हो गई, एंटरटेनमेंट की फील्ड है जिसमें परफॉर्म है, डांस है, कोई भी ऐसी एंटरटेनमेंट जो आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में चल रहा है, मवाद है कोई भी, वो उस हिसाब से हलाल और हराम जो है वो हलाल है या हराम है, उससे सवाल जवाब किए गए कि क्या ये ठीक है या गलत है, इसके पीछे की लॉजिक क्या है, इसके पीछे किस तरह से ये जायज़ है या हमारे लिए ये ठीक है या हम इसको कर सकते हैं या नहीं, इसकी जो कमाई है, जो इसके पीछे जो इनकम होगी, जो जनरेट होगी, क्या वो हमारे लिए हलाल है या हराम है। उसके बाद दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस सवाल सुनने के बाद जवाब दिए, और वो जवाब सुनकर मैं भी हैरान रह गया, और यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने किस अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, मुतमईन किया, और ऐसे जवाब दिए कि हमें आराम से समझ आ जाए, आसानी से समझ आ जाए, मुझे और आपको और सारी दुनिया जो देख रही है। उन्होंने यही कहा दोस्तों कि सबसे पहले तो अगर आपकी जो एक्ट है वो गलत नहीं है, मिसाल के तौर पर कोई एंटरटेनमेंट है, कुछ वो इस्लामिक कोई सीरियल है और उसमें आप अदाकारी कर रही हैं, तो वो गलत नहीं है, उसकी कमाई हलाल है। और किसी में फहाशी नहीं है, अगर उसमें हिजाब है, प्रॉपर ड्रेसिंग है, तो वो हलाल है। अगर वो गलत चीज़ों को प्रमोट करता है, वो उसमें जो है फहाशी दिखाता है, जो उसमें जो कपड़े पहने हुए हैं वो ठीक नहीं है, गलत
चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपका इंसानी दिमाग भी यही कहेगा। एक खुद की सोचने की भी सलाहियत है लोगों की ना, हमारी आपकी सबको अल्लाह ताला ने दी है कि एक बंदा खुद ही ये जानेगा यार ये चीज़ बहुत ओवर है, बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा न्यूडिटी दिखाई जा रही है, वल्गैरिटी दिखाई जा रही है, तो वो चीज़ें तो डेफिनेटली हराम है। और अगर ऐसे नहीं है, चीज़ें ठीक है और फहाशी नहीं है उसमें और नॉर्मल है, कोई एक्ट है, इस्लामिक चैनल है या फिर कोई आपको जैसे कह लें कि ऐसा कोई एक्ट है, ऐसी कोई इंटरटेनमेंट का पर्पज़ है, या कोई ड्रामा है, कोई फिल्म है जो आपको कुछ सिखाती है, अच्छी अखलाक सिखाती है, अच्छी आदत सिखाती है, या फिर कोई आपको अच्छी मैसेज जो है उसका बहुत अच्छा मैसेज है, दुनिया को बदल देने का मैसेज है या अच्छे काम करने का मैसेज है, लोगों की हेल्प करने का मैसेज है, लोगों के दुख सुख में उनके काम आने का मैसेज है, रिश्तों को निभाने का मैसेज है, माँ बाप का ख्याल रखने का मैसेज है, उनकी फर्माबरदारी का मैसेज है, दोस्तों के साथ उसने सलूक का मैसेज है, बीमारियों के साथ जो बीमार होते हैं लोग उनके साथ जो है प्यार मोहब्बत से पेश आने का मैसेज है। तो ये इससे बढ़कर और क्या चीज़ होगी, ये तो अच्छी चीज़ है। लेकिन इसी के बरक्स अगर मॉडलिंग, न्यूडिटी हम उसको दिखाएं, जिस्म की नुमाइश हो और ये चीज़ें हों तो ये तो हराम है दोस्तों। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। इसी तरह आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, लेकिन एक गुजारिश हमेशा की तरह वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और वीडियो को शेयर करना मत भूला करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।